Hello everyone. Let's today do letter writing topic for our writing skill in English language. Now letter writing की बात करें तो letter writing actually comes in two formats. Letter writing comes in two formats. दो तरह के letter writing आते हैं. Okay. One, we can go with formal letters, and second we can go with informal letters. Let us see what is the difference between these two. ये दोनों में difference क्या है? Actually formal मतलब we can tell official letter जिसमें point to point बात होती है, जिसमें hi, hello, how are you, hope you are fine, give regards to XYZ, ओके वो सब नहीं होता. इसमें रिस्पेक्टेड करके बात शुरू की जाती है. ओके एंड किस वजह से आप लेटर लिख रहे हो उसी पॉइंट पे बात होती है. ओके किस वजह से लेटर लिख रहे हो और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है about writing that letter, what kind of action to be taken, those things are included in formal letter. Okay, whereas informal की बात करें तो and yes, one more thing, formal letter always must be written in polite language, politely. Okay, क्योंकि formal है, official है, if we have even some complaint also, it's not that we can use some rude language for officers or management. No, we have to work with very polite language, in very soft voice, in very soft wording, so that officer should think that yes, he must reply the letter. इस तरह से लेटर होना चाहिए कि भले उसके बारे में अगेंस्ट हो लेकिन वो रिप्लाई करे उस लेटर का. सो लेटर शुड बी इन दैट वे. टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर वी कैन टेल दोज लेटर्स विच आर बीइंग रिटन फॉर रिलेटिव्स, पेरेंट्स, देन फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ओके वो इनफॉर्मल लेटर होता है जिसमें आप अपने पेरेंट्स से लिख रहे हो तो यू कैन टॉक अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर. इफ़ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड यू कैन टॉक अबाउट सर्टेन naughtiness done with one another, right? If you talk with your relatives, then you can talk about your cousins. You can ask how your cousins or aunt or uncle is. Okay, तो वो सब आप पूछ सकते हो. लेकिन सपोज़ आपके कोई अंकल या आपके कोई फादर ही आपको ऑफिस में लेटर लिखना है, दैट इज़ यू हैव टू राइट लेटर इन सम ऑफिस एंड दैट ऑफिसर इज़ योर रिलेटिव, then too it doesn't mean that you can go with informal way of writing letter, because we have to take care about post of person. Okay, अगर आप तो कुछ इनविटेशन के लिए लिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऑफिस के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हैं तो इट शुड बी फॉर्मल लेटर ऑलवेज. ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. I hope you people got cleared with the meanings of these two. Okay, today we will work with formal letter. आज हम formal letter से work करेंगे. ये writing skill में ऐसे, then letter, notice writing, message writing, report writing, then article writing, advertisement making, हर एक चीज़ का एक format होता है. All the things have a format. Okay, अब format की बात करें तो that format also contains marks. वो format के भी marks होते हैं.
and like for example I can give you one difference between these two. फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेयरएज इनफॉर्मल में नहीं. ओके, सो वो फॉर्मेट का हिस्सा है. राइटिंग सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. ओके, so today we will go with format of formal letter only. फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के साथ ही हम आज वर्क ऑन करेंगे. ओके, नाउ फॉर्मल लेटर के साथ वर्क ऑन करें तो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन दिस इज़ एड्रेस. सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आता है एड्रेस. एड्रेस मतलब we can tell sender's address. Okay, I will just show you about format. I will show you printed copy of format. Okay, हम यही format से समझेंगे कि what it is exactly is. Okay, see format of formal letter. Okay, very first is address. सी एड्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको परफेक्टली एड्रेस पता होना चाहिए. नाउ यू ऑल आर नॉट इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड दैट यू डोंट नो योर एड्रेस. आपको आपका एड्रेस या एड्रेस लिखना कैसे है वो पता होना चाहिए. मोस्टली क्या होता है, ऑल द हाउसेज आर गिवन नंबर्स, तो वेरी फर्स्ट यू कैन राइट नंबर. इफ़ यू आर लिविंग इन एनी बंगलो और इफ़ यू आर लिविंग इन house, then you must, if you have any particular name of house, that you have to write. Okay, but registered name, हाँ registered name. Okay, like यहाँ पे सरिता विहार लिखा है तो ये registered होगा, इसके लिए बाहर नेम प्लेट भी लगी होगी, इसके लिए ये नाम यहाँ पे मेंशन किया गया. Okay, or else if you are living in apartment, so you can write with flat number, apartment name and wing number A, B or whatever. Okay, and then next come to which area it is. Okay, which area, or is there any, is your house is in particular society, तो आपका वो particular society का नाम आएगा. And then comes to your town or village or city, living in Chikli, living in Navsari, वो सब आएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट अब डिटेल में जाएँ तो देन कम्स टू डिस्ट्रिक्ट नवसारी, स्टेट गुजरात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके एवरीवन, एंड वन मोर थिंग, हेयर 76 इज रिटन. 76 की जगह पर आई कैन से यू दिस इज अ टाइप ऑफ पिन कोड, एंड पिन कोड कम्स इन 6 डिजिट्स. कीप इन माइंड, पिन कोड जो है वो 6 डिजिट्स का है. So whatever address you write, you are supposed to write these 6 digits. See, this is just a format. तो आप कोई भी एड्रेस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटर पे कंपल्सरी अपना एड्रेस ही लिखना है. आप कोई भी एड्रेस लिखिए लेटर पे, दैट इज़ फॉर आवर सब्जेक्ट. ओके, अगर रियली आपको कोई लेटर लिखना है किसी ऑफिस में या कहीं, तो आपको आपका रियल एड्रेस यूज़ करना होगा. अंडरस्टूड? But for a moment, as we are doing with our writing practice of writing skill, we can use any kind of address here. Okay, but house number, area and town, city or village name, these three things are must with pin code of 6 digits. Okay everyone, like 396521, 396321. तो उसी तरह से कोई भी पिन कोड 6 डिजिट आपको लिखने होंगे एज अ पिन कोड. अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी हियर इट इज़ रिटन, सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. हाउएवर, इफ द लेटर इज एड्रेस्ड टू प्रिंसिपल और स्कूल हेड and is written by a student, the address can be omitted. See, सबसे पहली बात, आपको आपका एड्रेस बिगिनिंग में लिखना है. ओके, वेरी फर्स्ट कम्स टू योर एड्रेस.
योर मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस पहले आएगा। ओके हाँ, अगर आप स्कूल में ही अगर आप स्कूल को लेटर लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल एंड एज अ स्टूडेंट यू आर राइटिंग लेटर, तो देर इज़ नो नीड टू मेंशन योर एड्रेस, ओके, बिकॉज इन लेटर योर नेम एंड ऑल विल कम, सो इट इज़ लाइक आस्किंग फॉर लीव एप्लीकेशन और समथिंग। सो एज अ स्टूडेंट आप लेटर लिखोगे तो वहाँ पे सेंडर एड्रेस ना लिखो, चलेगा। बट अगर आप लाइक एज अ सोसाइटी मेंबर आप किसी न्यूज़पेपर एडिशन में आपको लेटर लिखना है, या यू हैव टू डू सम कंप्लेंट इन म्यूनसिपैलिटी रिगार्डिंग क्लीनिंग वर्क इन योर सराउंडिंग, तो उसके लिए यू हैव टू राइट योर एड्रेस फर्स्ट। अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप? ओके। सेकेंड स्टेप इज डेट। After the address, leave a line and mention the date and of writing the letter. See, आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, लेकिन एड्रेस लिखने के बाद वन लाइन लीव करके, एंड जस्ट सी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट, डे, month, comma and year. Understood? Now, after this, by again leaving one line, you have to write address to whom you are writing this letter. Like I told you, if you want to write a letter to municipality, if you want to write letter to newspaper editor, तो उसका एड्रेस यहाँ पे होगा। ओके, here it is written the transport in charge, कमला भारती स्कूल, मोहन नगर, देन एरिसी। नाउ यहाँ पे स्कूल को लेटर नहीं लिखा है, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को लेटर लिखना है। अंडरस्टूड? और वो इंचार्ज कहाँ का है? वो कमला भारती स्कूल का इंचार्ज है। अंडरस्टूड? सो दिस फर्स्ट यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस, सेकेंड यू हैव टू राइट डेट, एंड थर्ड यू हैव टू राइट एड्रेस टू whom you are writing the letter. Okay, now next comes to subject. By leaving one line, you have to write the reason of writing the letter must be introduced in the letter in the form of subject. See, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। सब्जेक्ट हार्डली वन लाइन या टू लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट में पूरा डिटेल नहीं लिखना। आप किस रीज़न के लिए लेटर लिख रहे हो, दैट यू हैव टू राइट इन सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? लाइक हेयर इट इज़ रिटन चेंज ऑफ रेसिडेंस एंड बस रूट, मतलब एड्रेस घर का चेंज हुआ है तो उसके लिए बस रूट चेंज करनी है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को लेटर लिखा गया। अंडरस्टूड? सो सिंपली दैट मेन पॉइंट क्या है लेटर लिखने का, दैट टू बी मेंशन इन सब्जेक्ट। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू दिस इज़ फॉर्मल लेटर, तो आपका जो सैल्यूटेशन होगा that will be respected sir or ma'am. Okay, salutation must be mentioned after the gap of one line after the designation and address of recipient. If you do not know the name of person, you are writing to use the greeting such as dear sir or ma'am. See, यहाँ पर हमें अगर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का नाम नहीं पता तो वी कैन यूज़ सिंपली सर और मैम। अंडरस्टूड? देन इफ़ यू नो द यूज़ द टाइटल। सी, अगर आपको नाम पता है कि यस किसको हम लेटर लिख रहे हैं, वो ऑफिसर का नाम क्या है, वो अगर आपको पता है तो यू हैव टू यूज़ टाइटल, रिस्पेक्टेड मिस्टर कुमार और रिस्पेक्टेड मिसेस खुराना, मिस कपूर एक्सेट्रा। ओके, तो ये टाइटल्स ज़रूर लगाने हैं। नाउ यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट एक और सीखने को मिलेगा। MR इज़ यूज्ड फॉर मेल, MRS इज़ यूज्ड फॉर मैरिड फीमेल, MISS इज़ यूज्ड फॉर अनमैरिड फीमेल, MS is used for female whose status is unknown. See, मिस, यहाँ पर ये भी मिस है और ये भी मिस,
बट यहाँ ये जो MS यूज़ होता है, इन दिस it means that we don't know whether that lady or whether that female is married or unmarried. So instead of Mrs. or MISS Miss, we can go with MS Miss. Understood? This should be followed by the surname only, not the first name. As I told you, Mr. Khurana, Mrs. Kapoor or Miss Patel etc., Miss Gandhi. तो मिस, मिस्टर, मिसेस के बाद नाम नहीं, उनका सरनेम बोलना है. इफ़ यू नो द नेम टू होम यू आर राइटिंग द लेटर, दैट कम्स हियर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम. अंडरस्टूड? सो दीज आर द मेन स्टेप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, beginning with the writer address, then leave one line, then date, then leave one line, then the address of the person to whom you are writing, and then comes to subject, and after subject comes to salutation, respected sir or ma'am or etc. Understood? Now after you complete writing salutation, you have to write body. ये बॉडी वर्ड नहीं लिखना आपको जो पैराग्राफ्स लिखने हैं, ये सब लिखने के बाद जब आपको पूरा अपना लेटर लिखना है, वो अब लेटर में सबसे पहले लेटर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोगे. इंट्रोडक्टरी दैट इज़ आप इंट्रोडक्शन दोगे कि आप किस वजह से ये लेटर लिख रहे हैं. सी सब्जेक्ट में आपने शॉर्टली लिखा, यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में जाइए और कौन सी वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, दैट यू हैव टू राइट. सेकेंड इज़ मेन बॉडी. एक्चुअली वो लेटर आप कौन सी वजह से लिख रहे हैं वो तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, बट वो लेटर लिखने की मेन रीज़न क्या है वो आप मेन बॉडी दैट इज़ सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे. अंडरस्टूड? जिसमें आप अपना पॉइंट क्लियर रखोगे और आप प्रॉपरली सब मेंशन करोगे. अंडरस्टूड? सो मेन बॉडी. और थर्ड पैराग्राफ होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग मतलब कंक्लूजन, दैट इज़ आप क्या चाहते हैं. लाइक यहाँ पर अगर हम बस रूट की बात करें तो दैट इज़ हमारे घर का एड्रेस चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा बस रूट चेंज हो जाए. तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस होगा या जो भी प्रोसीजर होगा वो हमें बताइए, सो दैट वी डू दैट एंड वी फाइनली चेंज अवर बस रूट. ओके, तो वो कंक्लूजन होगा कि व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट वी मस्ट गेट प्रॉपर रिप्लाई, प्रॉपर रिस्पॉन्ड ऑफ दिस लेटर, राइट. देन क्लोजर एंड द सब्सक्रिप्शन. अब लेटर को ख़त्म करना है. क्लोज योर लेटर विद सब्सक्रिप्शन सच एज फेथफुल और योर्स सिंसियरली, फॉलोड बाय योर सिग्नेचर, ऑप्शनल एंड नेम. सी क्लोजर एंड सब्सक्रिप्शन, 3 पैराग्राफ में आप लेटर फिनिश करके लास्ट में you cannot write your friend or your cousin or your son or daughter. No, you have to write official wordings only, that is आपका विश्वास पात्र या yours sincerely etc. ओके, ये लिखने के बाद नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नेम लिखेंगे. डू यू गेट दैट? सो दिस इज़ द फाइनली फॉर्मेट ऑफ formal letter. Okay, now if I show you one letter, अगर हम एक लेटर देखें, okay, तो we can see this letter. Actually these letters are school letters. See, अगर हमें स्कूल में लेटर लिखना है तो हमें राइटर का दैट इज़ हमारा एड्रेस नहीं लिखना. तो here directly written the headmaster, सर्वोदय मंदिर, प्रीत विहार, डेट, देन सब्जेक्ट. अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम कंप्लेसी यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखा है हमने, क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट रिटन आवर एड्रेस ऑन द टॉप. अगर हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट.
Understood? So these letters are for school. So here no need to write writer's address. Directly you can work with this receiver's address. But this I can show you letter written. These are complaint letters. Complaint letters में देखिए तो सी ये लेटर है ऑनलाइन स्टोर के लिए. सॉरी, you order a vase from online store, arrived and found it is broken. तो आपको वो स्टोर के लिए कंप्लेंट करना है. तो ये कंप्लेंट लेटर है, स्कूल के लिए लेटर नहीं है. सो व्हाट इट इज़? सो very first is this is writer's address. Okay, then leave one line, then date, then again leave one line and this is receiver's address, then leave one line and subject, then leave one line and salutation. Okay, and then body. See body part, it is first paragraph, second paragraph and third paragraph. No doubt second paragraph is of one line, that is not a issue. Okay, now after you finish these three paragraphs, next comes to your designation, that is your closure, yours sincerely and your proper name along with your surname. Understood? So this is the type of formal letter. Now either you write letter to school or you write letter to any office. These things should be written in left hand side only. Nothing to be written in right hand side. You have to take care of this thing. Understood? So this was explanation about our formal letter. Okay, formal letter की explanation है ये. Now for practice I'll be giving you PDF which you have to follow this system only and you have to write letters in your grammar notebook. Okay everyone, take care, go through this video twice, thrice until you understand the complete concept and then work with your PDF file. Okay everyone, take care everyone and continue with your studies. Bye bye.